Hello class. Now in this lecture we will see the how multi-plate clutch are working in case of the two-wheelers. So basically there are two type of clutch are present in case of the multi-plate category in case of the two-wheeler. One is the inward push and outward push. But sake of time just we will suppose to we will see outward pushing time first of all. Okay. Basic difference is only the pushing mechanism. Or rest of the working principle is same. Okay. uh, First of all, before going to working of this thing, okay, we need to understand what we have seen in the previous lecture. Okay, in the previous lecture I told you this head 2 and the basket, clutch basket is there. Okay, clutch assembly is this clutch housing having two main components. One is the clutch basket, okay, which is the outer portion, and at the center portion there is a boss, clutch boss is there. Okay, which is present in this exploded view. This is a clutch boss and this is a clutch basket. Okay, so this head 2 is the gear which is in mesh condition with the z1, which is z1, which is the another gear on the crankshaft. So here on this basket, the at outer edge you can see the teeth are there. So that gear is nothing but the z2. Okay, it is visible at the outer edge of this basket. The some teeth are visible. Okay, so this is nothing but the z2 and this is the outer basket. So similarly z2 and this outer basket is look like. At the center portion there is a boss which is fixed with the shaft which is entering to the gearbox. So this portion is gearbox. I told you in the previous lecture this is a gearbox. So inside the gearbox this shaft is entering, main shaft is clutch shaft is there, this clutch shaft entering into the gearbox. Okay, on this shaft head 2 and housing clutch basket is there and the clutch boss also there, but clutch housing or clutch basket and gear z2, okay, is free on this shaft. मीन जब z2 रोटेट होगा या बास्केट रोटेट होगा दैट टाइम शाफ्ट रोटेट होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज इट इज फ्री, इट इज फ्रीली माउंटेड, इट इज माउंटेड ऑन बेरिंग. ओके, जो क्लच शाफ्ट है उसके ऊपर एक बेरिंग है, उस बेरिंग के ऊपर हमने क्लच हाउसिंग एंड z2 माउंट किया है. z2 and clutch housing is the one piece as we can see in this figure. This clutch basket and the z2 is the gear which are the teeth present back side of the basket. Okay, so right now I am calling as a clutch basket only, means z2 भी आ जाएगा उसमें. Okay, so जो shaft है clutch shaft, okay, which is on which हमारा क्लच बास्केट एंड बॉस माउंटेड है, बट जो बॉस है जो कि ये है, ओके, इसको क्लच बॉस बोलते हैं. द क्लच बॉस इज फिक्स्ड विद दिस शाफ्ट, क्लच शाफ्ट विच इज एंटरिंग टू द गियर बॉक्स, बट क्लच बास्केट हमारे क्लच शाफ्ट से फिक्स नहीं है, ये फ्री है. सो नाउ इन दिस एक्सप्लोटेड व्यू जो सेंटर का शाफ्ट है क्लच शाफ्ट इज राइट नाउ नॉट शोन. ओके, सो ये जो 7 नंबर का है दैट इज पुश रॉड है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लच शाफ्ट. ये देखिए, ये जो क्लच शाफ्ट होता है वो सेंटर से हॉलो होता है, और उस हॉलो मीन्स जस्ट लाइक योर फ्लूट, जो फ्लूट होती है इन दैट वे इट इज हॉलो, ये क्लच शाफ्ट हॉलो रहता है. ओके, और इसके अंदर एक पुशिंग मैकेनिज्म, पुशिंग रॉड रहता है. सो दैट पुश रॉड ओनली शोन इन दिस एक्सप्लोडेड व्यू. ओके, बाकी इसके ऊपर जो शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के ऊपर ये माउंट है, ये क्लच शाफ्ट, वो एक्सप्लोडेड व्यू में शो नहीं है. ओके, इट्स नॉट शोन. सो ये ध्यान में रखो कि इसके सेंटर से क्लच शाफ्ट जा रहा है और इनसाइड दैट क्लच शाफ्ट पुश रॉड इज प्रेजेंट. ओके, एंड दिस इज अ बॉस, this boss is fixed with the clutch shaft. Okay, now there are number of plates you can see here. There are two types of plates are there. One is 9 number indicating clutch disc and 8 number indicating friction plates. So those friction plates are having outward splines, you can see it here.
disc is there, and they are having outward splines. Okay, just like a sun rays. Okay, so outward splines are there, and they are made by a composite form of material such as asbestos and leather, cork, such material which are having anti-fading characteristics. उनका composite form use करके they are made. Okay, and 9 number plates are called as a clutch disc, which is made by stainless steel, but you can observe they are having internal splines. Okay, you can see here. Okay, they are having internal splines. In the actual video, the dismantling of assembling of that clutch housing, उस वीडियो में आपको एक्चुअली कैसे दिखते हैं डिस्क you can notice, but right now just understand here. Okay, so stainless steel discs having internal splines. Now ये जो आपका आउटवर्ड स्प्लाइंस वाला डिस्क है वो फिक्स होता है बास्केट के साथ, क्लच बास्केट के साथ, और जो इंटरनल स्प्लाइन वाला स्टेनलेस स्टील डिस्क है वो फिक्स होता है आपके बॉस के साथ। अब कैसे फिक्स होगा? द एक्सटर्नल स्प्लाइन जो है फ्रिक्शन प्लेट के, दैट गेट इंसर्टेड और एंगेज विद द ग्रूव्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द बास्केट। बास्केट के ऊपर ग्रूव्स है, देखो उस ग्रूव में जाके ये स्प्लाइंस अटक जाएंगे। ओके, सो व्हेनेवर बास्केट रोटेट्स दैट फ्रिक्शन डिस्क रोटेट्स। नाउ ये जो स्टेनलेस स्टील का जो डिस्क है, प्लेट है, वो बॉक्स के साथ फिक्स होंगे, क्योंकि बॉक्स के ऊपर भी देखो स्लॉट्स है और स्टेनलेस स्टील के डिस्क के ऊपर इंटरनल स्प्लाइंस है, सो दैट इंटरनल स्प्लाइंस विल एंगेज विद द बॉस। सो जब बॉस रोटेट होगा तब स्टेनलेस स्टील प्लेट रोटेट होंगी। नाउ ये ध्यान दीजिए कि ये जो फ्रिक्शन डिस्क है और स्टेनलेस स्टील का डिस्क है, दे आर अरेंज अल्टरनेटली। एक के पहले फ्रिक्शन डिस्क है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, उसके फ्रिक्शन, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, सो अल्टरनेटली अरेंज है। सो ये जो बास्केट के ऊपर जो डिस्क माउंट है और जो बॉस के ऊपर डिस्क माउंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, बिकॉज दे आर अरेंज अल्टरनेटली। ओके, नाउ मैंने बोला था कि ये जो बॉस है वो क्लच शाफ्ट के ऊपर फिक्स्ड है, क्लच शाफ्ट गियर बॉक्स के अंदर जा रहा है, और ये जो बास्केट है वो फ्री है। बट इस बास्केट का जो एक गियर है वो किसके साथ एंगेज है? Z1 के साथ, इंजन के गियर के साथ। सो ये जो बास्केट है वो इंजन जैसे ही रोटेट होगा तो ये बास्केट भी रोटेट होगा, और बास्केट रोटेट होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये जो डिस्क है फ्रिक्शन डिस्क वो रोटेट होंगी। बट फ्रिक्शन डिस्क है जो किसके साथ कांटेक्ट में है? ये स्टेनलेस स्टील प्लेट के साथ। बट स्टेनलेस स्टील डिस्क किसके साथ फिक्स है? बॉस के साथ। और बॉस किसके ऊपर फिक्स्ड है? क्लच शाफ्ट के ऊपर। सो जब ये डिस्क घूमेगा तो स्टेनलेस स्टील डिस्क घूमेगा, स्टेनलेस डिस्क किसको घुमाएगा? बॉस को, और बॉस क्लच शाफ्ट के ऊपर फिक्स है तो क्लच शाफ्ट भी घूमेगा, और क्लच शाफ्ट कहा जा रहा है गियर बॉक्स के अंदर, सो गियर बॉक्स भी घूमेगा। नाउ अब ये इन दोनों के बीच में किसकी वजह से रोटेशन पावर ट्रांसमिशन हो रहा है? इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन के वजह से। सो इन डिस्क को, दैट इज फ्रिक्शन डिस्क को एंड स्टेनलेस डिस्क को जितना टाइटली एक दूसरे के साथ अगेंस्ट हम होल्ड करेंगे उतना क्या होगा, उनका फ्रिक्शन बढ़ेगा, और जितना हम इसको ढीला छोड़ेंगे, इन दोनों को क्यों ऐसे टाइटली यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया, सो जितना टाइट वो दोनों एक दूसरे के साथ सैंडविच हो जाएंगे। अगर हमने उसको फ्री किया, एक दूसरे में इन दोनों के बीच में गैप आ गया 1 mm का फॉर एग्जांपल, सो इन दोनों के बीच में का फ्रिक्शन कम होगा, सो पावर ट्रांसमिशन बास्केट से बॉस को नहीं होगा और बॉस से क्लच शाफ्ट को नहीं होगा, और क्लच शाफ्ट जो गियर बॉक्स के अंदर जा रहा है वो पावर ट्रांसमिट इंजन से नहीं कर पाएगा। ओके, सो उसके लिए हमने क्या किया, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए एक प्रेशर प्लेट लगाया। ओके, अब देखिए ये जो हमारा बॉस है, बॉस के ऊपर ऐसे स्पाइडर्स है, स्पाइडर्स मीन्स ऐसे एक्सटेंडेड फिंगर्स है, एक्सटेंडेड फिंगर है, उस फिंगर के अंदर ये बोल्ट्स जाते हैं। ये जो बोल्ट दिख रहे हैं 1 2 3 4 बोल्ट्स है और एक बोल्ट जाते हैं। अब ये क्या होता है कि ये सब असेंबली होने के बाद, ये सब डिस्क बास्केट में जाने के बाद, ये डिस्क बॉस के ऊपर लगने के बाद ये प्रेशर प्लेट ऊपर से आता है। प्रेशर प्लेट
इन सारे डिस्क को पुश करता है एक दूसरे के अगेंस्ट टूवर्ड्स, एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करता है टाइटली, और वो प्रेशर बना के रखने के लिए उसके ऊपर हम कॉइल स्प्रिंग लगाते हैं। और कॉइल स्प्रिंग का यूज करके, कॉइल स्प्रिंग को उसके जगह पे होल्ड करने के लिए ये जो बोल्ट्स है वो बोल्ट्स इस फिंगर के अंदर जाता है। ओके, सो ये प्रेशर प्लेट करके ऐड करता है। पॉट नंबर 4 इज एक्ट एज अ प्रेशर प्लेट विच पुशिंग ऑल द डिस्क्स टुगेदर, okay, grabbing or holding all the discs together, that is driver and the driver discs. So whenever we are applying a clutch pedal or clutch, we are pressing the clutch lever, so center shaft एक यहाँ से pushing mechanism रहेगा, that pushing mechanism push this push rod in this direction outward. so ये क्या करता है, प्रेशर प्लेट को बाहर ढकेलता है। जैसे प्रेशर प्लेट को बाहर ढकेल दिया, प्रेशर प्लेट इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा क्लच डिस्क के ऊपर। सो ड्राइवर एंड ड्रिवन प्लेट के बीच में, या ये जो अपना ये डिस्क है और स्टेनलेस स्टील डिस्क है, इसके बीच में गैप आ जाएगा 1 mm का या 0.2 या 0.5 mm का। ओके, सो जैसे ही गैप आ गया क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में का फ्रिक्शन कम हो जाएगा और क्लच का जो ये बास्केट है ये बॉस के साथ पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने क्लच लीवर प्रेस किया और पुशिंग मैकेनिज्म ने इस पुश रॉड को इस डायरेक्शन में पुश किया और प्रेशर प्लेट भी उस डायरेक्शन में चला गया, और बिकॉज ऑफ दैट एक दूसरे के अगेंस्ट जो टाइटली होल्ड है ड्रिवन एंड ड्राइवर डिस्क प्लेट, वो होल्ड नहीं हो रह पाए और उसके वजह से क्लच डिसएंगेज हो गया। मतलब इंजन का पावर गियर बॉक्स में नहीं जा रहा है। जैसे मैंने क्लच लीवर छोड़ दिया, ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये प्रेशर प्लेट को अगेन पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, पुश रॉड पीछे आ जाएगा, अगेन ड्राइवर एंड ड्रिवन प्लेट अगेन टाइटली होल्ड हो जाएंगे। सो इन दैट वे एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होता है। इस केस में इसको बोलते हैं आउटवर्ड पुशिंग टाइप। हाँ, इनवर्ड पुशिंग में क्या होता है, दिस इज अनदर थिंग, इनवर्ड पुशिंग टाइप। इसमें भी क्लच बास्केट है, एक क्लच बास्केट, बट डिफरेंस देखिए क्लच बास्केट के कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस देखिए। या क्लच बास्केट का अलग है और यहाँ हमारा क्लच बास्केट अलग है। ओके, देखिए आफ्टर दैट बॉस ऑल्सो लुकिंग डिफरेंट हियर, बॉस भी अलग दिख रहा है यहाँ, ठीक है। सॉरी, दिस इज ये जो 7 नंबर का है वो है यहाँ प्रेशर प्लेट है। यहाँ क्या था, प्रेशर प्लेट प्लेन था। पार्ट नंबर 4 इज द प्रेशर प्लेट इन केस ऑफ द आउटवर्ड पुशिंग। इन केस ऑफ द इनवर्ड पुशिंग प्रेशर प्लेट को फिंगर्स है, ओके, और ये जो है पार्ट नंबर 2 वो आपका बॉस है। ओके, सो डिफरेंस इज देयर। सो इन एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नो नीड टू वरी कि हम इनवर्ड पुश करें या आउटवर्ड पुश करें। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट नो कि क्या डिफरेंस है, बॉस इनवर्ड पुश का बॉस कैसे दिखता है, आउटवर्ड पुश का बॉस कैसे दिखता है। सो दिस इज द बॉस ऑफ इनवर्ड आउटवर्ड पुश, उसको ही फिंगर है और प्रेशर प्लेट प्लेन है यहाँ, और ये है आपका क्लच हाउसिंग और सॉरी क्लच बास्केट, और यह है हमारा क्लच बास्केट, ये हमारा प्रेशर प्लेट, ये है हमारा बॉस। ओके, सो अभी इसमें क्या है, इस इनवर्ड पुश। सो जो भी हमारा पुशिंग मैकेनिज्म है 12 नंबर का जो पॉइंट है वो हमारा पुशिंग मैकेनिज्म, इसमें हम अंदर के साइड में पुश करते हैं। जैसे लीवर दबाते हैं, क्लच पेडल दबाता है, अंदर के साइड में पुश होता है और उससे क्लच एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट मतलब ये जो हमारा प्रेशर प्लेट्स, ये हमारा डिस्क है, ये जो मैंने बोला था स्प्लाइंस, इंटरनल स्प्लाइंस, तो इंटरनल स्प्लाइंस लुक लाइक दिस, एक्सटर्नल स्प्लाइंस इज लुक लाइक दिस। देखिए, ओके, इट्स लुक लाइक दिस। सो ये जो हमारा प्लेट्स है, स्टील प्लेट एंड द फ्रिक्शन डिस्क, एक दूसरे के अगेंस्ट टाइटली होल्ड है, एक दूसरे के टाइटली ग्रैब है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइल स्प्रिंग्स, विद द प्रेशर ऑफ कॉइल स्प्रिंग, देन क्लच एंगेज रहता है। जैसे हम लीवर दबाते हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट टाइटली होल्ड नहीं रहते और क्या हो जाएगा, हमारा क्लच स्टील प्लेट एंड जो फ्रिक्शन डिस्क है उसके बीच में गैप आ जाएगा और वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा उतना पावरफुल दोनों के बीच में का। सो बिकॉज ऑफ पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, मतलब डिसएंगेज हो गया। सो सेम प्रिंसिपल है, ओनली जो पुशिंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, इनवर्ड आउटवर्ड। जस्ट रिमेंबर द वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वेरी सिंपल images are available in the books like Kripal Singh, okay, for the multi-plate clutch के लिए आप for the exam point of view you can prepare that, but this is a realistic view, actual field में कैसे दिखता है। okay, so I also going to share one video with you, in that you come to know कि जो क्लच हाउसिंग है, क्लच बास्केट है, उसमें फ्री जो बोला मैंने, क्लच बास्केट कैसे फ्रीली माउंट होता है और ये हमारा बॉस कैसे शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। ओके, सो जो क्लच शाफ्ट होता है उसको भी स्प्लाइंस होते हैं
और बॉस को सेंटर में स्प्लाइंस होते हैं. So because of that boss with the help of splines is fixed with the clutch shaft. So this is the thing how it look like. जब हम एक्चुअली देखेंगे तब ये समझ में आएगा रियलिस्टिक व्यू, क्योंकि ये जो है रिलेवेंट इमेज है, एक्चुअल इमेज है जो कि पार्ट जैसे दिखता है. ओके एंड बुकिश जो भी इमेज है दैट यू कैन गेट इन कृपाल सिंह. ओके थैंक यू.